So, very good afternoon, all the participants on this Sunday afternoon. You are all here. So, let us try to understand this chart. I have already shared this file in the group and I hope you all have access to it. I have made some of you as co-host also, so you can keep on adding people, right? If somebody comes, you can add, right? So, first thing first. First is sheet and it says chapters, right? So part one contains how many sections? Part one, four sections, sir. अरे सामने तो नजर आ रहा है पार्ट हाँ, वन one, में two, कितने three, one, सेक्शंस two, है? three. Yes, sir, 1, 2, 3. हाँ 1 2 3 1 2 and the 3 correct. definitions given in 3 whether they apply to the whole of the code or to this part only. Part. To this part only. होम कोड नहीं, whole yes, sir. code. हाँ, section 3 पूरे कोड को लागू पड़ते हैं. हाँ so yes, the sir. definitions which are given in section 3 they apply to the whole of the code because section 3 starts with in this code. ठीक है? If you open section 3 क्या बोलता है? In this code. Yes, और sir. अगर सेक्शन 5 आप देखें तो सेक्शन 5 में क्या बोलता है? इन दिस पार्ट. Yes, ठीक है? sir. ये डिफरेंस है. कोई पूछेगा भाई कहाँ लिखा है ये बात कि ये पूरे कोड को अप्लाई होती है और ये चैप्टर को अप्लाई होती है, तो यहाँ लिखा है. Section सेक्शन 3 3 जब आप स्टार्ट करते हो लिखा है इन दिस कोड और जब आप सेक्शन 5 देखते हो तो क्या लिखता है? इन दिस चैप्टर, है ना? इन दिस पार्ट, सॉरी, इन दिस पार्ट. तो वो डेफिनेशन पार्ट 2 को अप्लाई करती हैं बिकॉज देयर आर डेफिनेशंस इन पार्ट 3 ऑल्सो. ठीक है? तो पार्ट 1 it deals with sections 1 to 3 and the definitions which are given in section 3 they apply to the whole of the code. Now part 2 deals with CIRP process, right? And how many chapters are there in part 2? part 2 में कितने chapters हैं? 6. 4 chapters. 4. 5 chapters, sir. यहां सामने नजर आ रहा है? 6. नजर नहीं आ रहा? 7 chapters. 7 कहां से हो गए? 6 है. 5 और 6 हुआ. 6 थोड़ा छोटा कर देता हूं, ज्यादा बड़ा हो गया. एक मिनट बस एक मिनट, ये क्या हो रहा है? Actually, part 2, 7 chapters is showing because 7 chapter is offenses and penalties. ये यस सर, नमस्ते सर. नमस्ते जी. तो पार्ट 2 में कितने चैप्टर्स हैं? पार्ट 2 में चैप्टर्स हाँ 5 है, sir. कोई 7 5 बोल chapters रहा है, है. कोई 6 बोल रहा है. नहीं सर, 5 6 7 सर. 7 सर. 7 7 7 है? chapters. 7 सर. 7 chapters. ठीक. 7 chapter is offenses and penalties. हाँ. That is not being ठीक है. shown here. परफेक्ट Offenses परफेक्ट and- सर. तो कोई बात नहीं, अब आप एक पेन और पेंसिल ले लो, इस पर ही करेक्शन करते जाते हैं. ठीक है ना? तो यहाँ पार्ट 6 तक लिखा हुआ है ना, तो हम इसमें पार्ट 7 भी डाल देंगे. ये Part 2 chapter 7. हाँ चैप्टर 7 हो जाएगा ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज का. ठीक है जी. चलिए, इसका इसका नाम है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज. यहां डाल देंगे, 6 के साथ ही लिख देंगे ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज. सर, आप अच्छा, एक्सेल फाइल में अपडेट कर रहे हो? है आप एक्सेल फाइल में अपडेट कर रहे हो? एक्सेल फाइल में नहीं, मेरे पास जो प्रिंट आउट है ये पीडीएफ है ना एक्चुअली. ओके, उसी में आप. ओके. मैं हाथ से लिख लूंगा ना, बाद में कर देंगे अपडेट, इसको एक्सेल में कन्वर्ट कर लेंगे ना. यस आप सर. smallpdf.com पे जाओ और smallpdf.com पे ही एक्सेल में कन्वर्ट हो जाएगी. अच्छा. Excel is already updated. Excel is already there. In the 7 chapter is also there. Excel. अच्छा तो नहीं वो ठीक है, वो एक्सेल वो पुराने वाली होगी ना जिसमें 12-13 शीट्स थी. हाँ, correct. That is only I'm seeing now. हाँ अभी क्या है, अभी ये बना दिया 8 शीट्स. इसमें शीट कम कर दिया हमने, उसको बोला कि भाई शीट्स Okay. कम करो. Okay. वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया होगा, वो 7 भी होगा कहीं, वो और चला गया होगा कहीं. Okay. That means there is another Excel file which you sent because I'm Right. referring this to. Okay. That I don't have. Okay. But I've shared in this group also.
because that morning only. itself, I have shared in this group. Okay. 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 I'll take it again. So in part 3, how many chapters are there? In part 3. Part 3 Six. again, Six, sir. Six, seven sir. chapters. 6 as per this chapter. भाई कोई बोल रहा 5, कोई बोल रहा 6. 6 है सर इसमें तो. नहीं 7 है सर. 7. Seven. Because part 3 also contains offenses and penalties. राइट. तो पार्ट 3 के अंदर भी 7 है. और ये जो शीट है इसमें कितने लिखे हैं? 6 लिखे हैं सर. ये यहां देख लेते हैं ना, पार्ट 3. 1 2 3 4 5 6. 6. ठीक है. तो इसमें भी 7 हो जाएगा. ठीक है ना. तो यहां भी चैप्टर 7 कर देंगे. ठीक है. ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज. और उसके बाद में पार्ट 4 में कितने चैप्टर्स हैं? OP 7A, finance and accounts and audit, 7th chapter. 7 चैप्टर्स हैं. और यहां कितने लिखता है? 1 2 3 4 5 6 तक लिखता है ये, है ना. तो यहां भी चैप्टर 7. एक्चुअली मेरे को पता क्यों लग रहा है ये, क्यों नहीं लिखा है ये. ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज इसे अलग से कवर किया है. लेट अस सी, है ना. और पार्ट 5 में कितने चैप्टर्स हैं? पार्ट 5 में कोई चैप्टर नहीं है. ठीक है ना. तो पार्ट 5 मिसलेनियस है. एंड देन देयर आर 12 शेड्यूल्स. ठीक है. तो अभी हमने क्या नोटिस किया इसमें कि चैप्टर 7 इज मिसिंग इन पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4. ठीक है. उसको ऐड कर लेंगे, कोई इशू नहीं है. ये जो पीडीएफ फाइल है, दिस ऑल्सो यू कैन कन्वर्ट इनटू एक्सेल बाय गोइंग टू smallpdf.com. स्मॉल नहीं तो मैं उसको बोल दूंगा, जिसने भेजा ना मेरे को, उसने तो एक्सेल में ही बनाया होगा. मैं उसी को बोल दूंगा एक्सेल वाला शीट भी भेज देगा मेरे को, कोई इशू नहीं. तो यूके टाइमिंग हमारे टाइमिंग से कैसे पीछे आ गया है? यूके टाइमिंग आगे होगा इसमें. व्हाट विल बी द टाइम इन यूके दिस टाइम? अभी देख लेते हैं सर, देख लेते हैं. अभी वहां पे सुबह के 10 सवा 10 बजे है सर. सुबह के 10:15 ना. तो अभी उसको मैसेज सॉरी, इसमें लिखा है बिहाइंड 5:30, 5 hours 30 minutes बिहाइंड टू इंडियन टाइमिंग. हाँ तो ठीक है, 5.5 घंटे पीछे है नाम से. बढ़िया है. वहां पे सुबह के सवा 10 बजे है. हाँ बस ठीक है. एक्सेल फाइल फॉर दिस, मैं बोल दिया है कि एक्सेल फाइल भेज दे. एक्सेल फाइल में हो जाएगा करेक्शन. ठीक है जी. चलिए, उसके बाद क्या है? ये हो गए पार्ट 5. तो पहली लाइन तो हमने पढ़ ली. उसके बाद अब आगे चलते हैं. फिर यहां क्या कहता है? ऑल फॉर्म्स अंडर आईबीसी. ये फॉर्म्स है. ठीक है. ये ज्यादा ही बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर देता हूं. अब ठीक है. अभी इतना गर्मी हो गया, हिसाब से तो एसी चलाना पड़ेगा. ओके. सो दीज आर द फॉर्म्स. ठीक है. फॉर्म्स अंडर आईबीसी रूल्स एंड रेगुलेशंस. सो नाउ लेट अस सी द फॉर्म्स, वेदर फॉर्म्स आर करेक्ट. सो इट सेज this form is given in rule, right? So rule 4 sub rule 1, form number 1, application by FC to initiate CIRP. ठीक है. Form number 2 is for what? Written Written प्रपोज. बोलिए. communication by proposed IRP. हाँ, written communication by proposed IRP. Proposed IRP. But now suppose IRP is elevated as RP, then what form is to be used? AA. AA. वेरी गुड. तो वो भी देख लेते हैं. AA फॉर्म दिया हुआ है इसमें, नहीं दिया हुआ? Yeah, it's given. फॉर्म AA. ठीक है. रिटन consent to act as RP, right? And in case some RP is replaced by new RP, then whether form 2 is to be used or form AA is to be used? AA. AA. वेरी गुड. ठीक है. एक RP है. देखो IRP जब होगा,
initially suppose financial creditor wants to file the application, right? Then he will get form 2 signed. In case now in the first meeting, COC may decide either to replace him or to continue him. In case he is continuing, तो अभी कोई नया फॉर्म साइन कराना है या पुराने से चल जाएगा? फॉर्म 2 तो साइंड है उसका ऑलरेडी। न्यू फॉर्म साइन होगा सर। न्यू फॉर्म अगर साइन होगा, वेरी गुड। तो आपका फॉर्म डबल ए साइन होगा। अब वो 4 मीटिंग्स तक चल गया आरपी, 5वीं मीटिंग में सीओसी ने उसको रिप्लेस कर दिया बाय द न्यू आरपी। तो न्यू आरपी से आपको फॉर्म 2 लेना है या फॉर्म डबल ए लेना है? डबल ए। double A. डबल ए, वेरी गुड, ठीक है। और फॉर्म 3 इज फॉर डिमांड नोटिस और इनवॉइस डिमांडिंग पेमेंट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिमांड नोटिस और इनवॉइस डिमांडिंग पेमेंट? इन विच केस डिमांड नोटिस इज इशूड एंड इन विच केस इनवॉइस इज इशूड? Sir, demand notice is without invoice, and it is attaching the invoice, this invoice notice. Right. So form 3 says कि there could be situations where you have not raised the invoice, but you have done the work. So if you have done the work and you want to claim the money, suppose in case of civil contracts, in civil contracts, invoice is issued on achievement of certain milestones, right? So in that case, suppose that particular milestone is not achieved, then you will issue a demand notice. Otherwise, you will issue an invoice. Suppose you are a statutory auditor. So during the year also you are rendering some services. You might be raising the invoice at the year end only. है ना? Some professionals they raise only a single invoice at the end of the year. But suppose during the intervening period there is some issue and they want to initiate CIRP, then they will issue the demand notice. और फॉर्म 4 क्या है? फॉर्म 4 Notice. एक बार फॉर्म भी खोल लीजिए साथ में। ये जो लिखा है पता नहीं सही भी लिखा है कि नहीं लिखा, चेक कर लीजिए फॉर्म 4 खोल करके। यस सर। सर ये भी ऑपरेशनल क्रेडिटर का होगा विद इनवॉइस फॉर्म 4। हाँ नहीं वो ठीक है, पर फॉर्म 4 ये जो लिखा है ये ठीक लिखा है कि नहीं लिखा, क्या है? फॉर्म ऑफ नोटिस है ना? फॉर्म ऑफ नोटिस विद विच इनवॉइस डिमांडिंग पेमेंट इज टू बी अटैच। ये फॉर्म ऑफ नोटिस है बेसिकली, ठीक है। ओके। अब 3 और 4 में फर्क क्या है? ये सीडी को भेजा जाता है और 3 भी सीडी को भेजा जाता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3 एंड 4? सर वही है। One is for operational creditors. Invoice. नहीं वो तो दोनों ही ऑपरेशनल के लिए ही है। सर एक में विद इनवॉइस है, एक विदाउट इनवॉइस है। 3 में विदाउट है, ये 4 विद इनवॉइस है। हाँ हाँ, अगर इनवॉइस रेज किया है तो फॉर्म 4 में करोगे आप, और अगर इनवॉइस नहीं है तो फिर आप फॉर्म 3 के अंदर नोटिस। या फॉर्म 3 और 4 दोनों जरूरी है, या अगर फॉर्म 3 दे दिया तो 4 जरूरी नहीं है? मतलब ये ऑल्टरनेटिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, या क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने फॉर्म 3 इशू कर दिया, ठीक है, आपने इनवॉइस रेज नहीं किया, आपने फॉर्म 3 इशू कर दिया, तो क्या फॉर्म 4 भी भरोगे या नहीं भरोगे? Suppose if we invoice later on when we issue invoice, then we'll have to. No, no, no. That time we have to- At this juncture, there is nothing. There is no such thing. कि भाई you will be issuing invoice. Suppose you have not issued the invoice, right? My question is you have not issued the invoice and you have issued form number 3, demand notice in form number 3. Now, after that, you will be issuing form 4 also या नहीं? या दोनों में से एक ही करना है, या दोनों भी कर सकते हैं? मेरा क्वेश्चन ये है, सिंपल क्वेश्चन है। सर एक कर सकते हैं पहले, और फिर अगर जरूरत पड़े तो दोनों भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, ये तो कोई आंसर नहीं हुआ। I think once demand notice issued, that will be ratified with invoice later. देखो फॉर्म 3 क्या बोलता है? फॉर्म 3 बोलता है क्लॉज ए ऑफ सब रूल 1 ऑफ रूल 5, और ये बोलता है क्लॉज बी। तो ये क्लॉज ए के अंदर फॉर्म 3 इशू करना है, और क्लॉज बी के अंदर आपको यूज करना है फॉर्म 4। एक बार रूल 5 निकाल लीजिए, रूल 5 निकालिए, एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रूल्स। आपको वहां क्लियर हो जाएगा। वो ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेता है, आपने पूरी रामायण पढ़ ली, बाद में यहां कंफ्यूज हो जाते हो। तो वो क्या कहता है?
An operational creditor shall deliver to the corporate debtor the following document, namely a demand notice in form 3 or a copy of an invoice attached with the notice in form 4. तो ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, या तो 3 इशू करोगे या 4, ऐसा नहीं है कि दोनों इशू कर दोगे। ठीक है जी, Yeah. रूल 5 देख लिया आपने? Yes, sir. ओके, चलिए। नाउ फॉर्म नंबर 5, एप्लीकेशन बाय ओसी टू इनिशिएट सीआईआरपी। ठीक है, उसके बाद में फॉर्म नंबर 6, एप्लीकेशन बाय सीडी टू इनिशिएट सीआईआरपी। इसके साथ में एफिडेविट स्पेलिंग गलत लिख दिया इसने, एफिडेविट, वो मेरे ख्याल उसने स्पेलिंग करेक्ट नहीं किए, जो पहले लिखे होंगे वही कर दिए होंगे इसने, इसको भी ठीक कर देते हैं, एफिडेविट। ठीक है ना, एफिडेविट भी लगाना है इसमें। एफिडेविट में क्या देना है फॉर्म 6 में? फॉर्म 6 के साथ में कह रहा है एफिडेविट भी लगाना है। तो क्या एफिडेविट है? एफिडेविट आपका एनेक्सर 8 में एफिडेविट कहता है एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ द एप्लीकेशन इन अकॉर्डेंस विद द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रूल्स। उस एफिडेविट में क्या लिखना है आपको? लिखेंगे कि we are not initiating this application to defraud the creditors and कुछ लिख नहीं, करके ये देंगे। एफिडेविट की बात कहां पर लिखी गई है? ये कहीं लिखा है क्या रूल्स में? तो देख लेते हैं इसमें। रूल्स में ना, आप ये देखिए 7 देखिए, एप्लीकेशन बाय कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। Yes, sir. A corporate application for initiating the corporate insolvency resolution process against a corporate debtor under Section 10 of the Code in Form 6, accompanied with documents and records required therein and as specified in the Insolvency and Bankruptcy Board of India for Regulations 2016. The applicant under sub rule 1 shall serve a copy of the application to the board by registered post or speed post or by hand or before नहीं, filing. यहां तो नहीं लिखा, लेकिन जो अगर आप फॉर्म देखो, अगर फॉर्म 6 देखो, तो फॉर्म 6 के अंदर है कुछ क्या? एफिडेविट एनेक्सर में लिखता है, ये कहता है प्लीज अटैच द फॉलोइंग टू दिस एप्लीकेशन। एनेक्सर 8 देखो, 8 में कहता है एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ द एप्लीकेशन इन अकॉर्डेंस विद द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रूल्स 2016। आप सेक्शन 10 देखो, सेक्शन 10 में कुछ लिखा है क्या एफिडेविट के बारे में? सेक्शन 10 नहीं, इसमें भी कुछ नहीं लिखता, वो सिर्फ वहीं पर लिखा हुआ है। जब फॉर्म 6 आप देखते हो ना, तो फॉर्म 6 के जो एनेक्सर्स हैं वहां पर लिखा हुआ है कि एफिडेविट भी आपको लगाना है। एनेक्सर 8 देख रहे हो ना आप नीचे इंस्ट्रक्शंस में? यस सर। फॉर्म 6 के नीचे इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं। इंस्ट्रक्शंस में एनेक्सर नंबर 8 जो है वो लिखा है एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है जी, क्योंकि रूल 7 में भी कुछ नहीं बोलता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5A। तो यहाँ पे ये अपडेट करना है कि चलेगा, क्या करेंगे? नहीं, अपडेट क्या करना है? अपडेट ये कुछ नहीं करना है, affidavit- इसके साथ में ज्यादा आप ये लिख सकते हो कि एज पर एनेक्सर 8। हाँ वो बराबर रहेगा एज पर नेक्स्ट डेट। इसके साथ में एज पर एनेक्सर 8 लिख दोगे ना, तो क्लैरिटी हो जाएगी, हम्म। है ना? हाँ एफिडेविट इनटू ब्रैकेट एज पर नेक्स्ट डेट। हाँ तो हाँ हाँ, तो Where, पता which चल जाएगा section? ना, अभी वरना दोबारा ढूंढते रहोगे कहाँ है ये। चलिए, Is it section 6, sir? For sections, for form 6, I have to write like this. फॉर्म 6, yes, so फॉर्म 6 we are discussing where is the affidavit written. तो affidavit, reference to affidavit is given in annexure 8 to this form number 6. Okay. So it says affidavit in support of the application, right? Now 5A. 5A is the certificate by bank on its letterhead as to any payment from CD is received by OC or not. So now this is optional. ठीक है ना? अब ये क्या लिखता है? अब if available. फॉर्म 5A में क्या है? if available. वो क्या, पहले वर्ड ये नहीं था,
अभी क्या हो गया, ये ऑप्शनल है, फॉर्म 5A। ठीक है, तो इसके साथ में हम लिख सकते हैं इफ अवेलेबल। फॉर्म 5A के आगे लिख दीजिए इफ अवेलेबल। What is LH? LH लेटर हेड। Letterhead. Okay. भाई थोड़ा शॉर्ट में लिखा है ना, Got ये it. तो ये स्टूडेंट के ने नोट्स बना रखे हैं अपने, है ना। हो गया जी। अब 5A में इफ अवेलेबल कहाँ लिखा है आप ये पूछोगे, तो आपको सेक्शन 9(3)(c) देख लेना है। सेक्शन 9(3)(c) देख लीजिए एक बार। 9(3)(c) पढ़ लीजिए एक बार। कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, पढ़ू सर? हाँ पढ़ लीजिए। A copy of certificate from the financial institution maintaining accounts of the operational creditors confirming that there is no payment of an unpaid operational debt by the corporate creditors if available. हाँ, तो फिर क्या हो गया, पहले जो था ये था बाय द कॉर्पोरेट डेटर, इफ अवेलेबल वर्ड नहीं था। पर कईयों को प्रॉब्लम आती थी, बैंकर सर्टिफिकेट देता नहीं था। बैंकर बोलता मुझे क्या पता तुम्हारे 36 अकाउंट है, कहाँ कहाँ अकाउंट है कहाँ नहीं है, मुझे क्या पता, है ना। मैं कैसे सर्टिफिकेट दे दूं पेमेंट रिसीव हुई कि नहीं हुई, है ना। तो इसलिए इन्होंने चेंज कर दिया और इसको बोल दिया इफ अवेलेबल। ये मैक्वायर बैंक वाला केस था, एक मैक्वायर कौन बैंक सा? वाला केस आया था, तो उसकी वजह से ये चेंज हो गया। पहले लिखा था कि एफिडेविट देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट दे बैंकर देता नहीं था, बोलता था मुझे क्या मालूम। भाई हम तो अपने एक बैंक का बता सकते हैं ना, तुमने तो किसी दूसरे अकाउंट में रिसीव कर लियो, एक कंपनी तो 36 बैंकों में अकाउंट खोल सकती है। तो इसीलिए उन्होंने चेंज कर दिया, इसको लिख दिया इफ अवेलेबल। ठीक है जी, चलिए। सर तो इसके केस आगे हम नंबर लिख कौन सा? देंगे इफ अवेलेबल। सर केस का नाम क्या बोला सर? केस मैक्वायर नेशनल बैंक ऐसा कुछ केस था। ओके सर। वो पुराना केस था, पहले तो सिलेबस में भी होता था, आजकल सिलेबस में नहीं है। एक मिनट। मैं बुक भी खोल लेता हूं साथ में। तो 9(3)(c). एक केस था, नाम था मैक्वायर बैंक लिमिटेड वर्सेस शिल्पी केबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। सुप्रीम कोर्ट का केस है ये। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। उतना याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसके आगे लिख दो इफ अवेलेबल, बस बहुत है। चलिए अगला देखते हैं। ओके सर। इसके बाद आगे है जी आपका 7 के साथ में 1। ये 1 क्या है, ये फॉर्म 1 है सर। ये फॉर्म 1 है। ठीक है, FC। तो अब वो ऊपर वाला भी फॉर्म 1 है और ये भी फॉर्म 1 है। हम्म। तो ये क्या चीज है, ये दोनों ही फॉर्म 1 है क्या। सर ये फीस अलोंग विद द फॉर्म जो जमा करना है फाइनेंशियल क्रेडिटर का। रूल अच्छा 4 है सर, रूल 4 ऑफ CIRP। है, रूल 4 ऑफ CIRP। अच्छा। अच्छा, ये फाइनेंशियल क्रेडिटर के केस में कह रहा है कि आपको 25,000 रुपीज फीस जमा कराना अलॉन्ग विद फॉर्म 1। तो हम इसको ऊपर ही क्यों ना लिख देते, जो ऊपर में फॉर्म 1 लिखा है उसके साथ नहीं हो सकता था ये, हाँ सर ये ऊपर ही जाता वैसे तो, है ऊपर ही जाता सर वैसे तो। है ना। अगर ऊपर भी कर सकते थे इसको, जहां पर एप्लीकेशन बाई FC लिखा है शुरू में, या इसी के साथ ही लिख सकते हैं हम लोग यहां। मार्क कर लो इसको, कि इसको अपने हिसाब से बना लेना आप, अगर आपको उसके साथ जोड़ना हो तो उसके साथ जोड़ सकते हो। ठीक है जी। हम्म। उसके बाद में ऑपरेशनल क्रेडिटर, तो ये फॉर्म नंबर 3 और फॉर्म नंबर 4 है। ऑपरेशनल क्रेडिटर क्या है, ये डिमांड नोटिस। ठीक है, एप्लीकेशन बाई OC,
ये फॉर्म ये तो नंबर 5 है, इसमें एप्लीकेशन बाई ओसी, इसमें फीस है 2000 रुपीज। और ये आपका फॉर्म नंबर 6 है, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, फीस 25,000 ओनली, बाई स्पेशल रेजोल्यूशन बाई शेयर होल्डर्स, और रेजोल्यूशन बाई 3/4 ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द सीडी। ठीक है, वो एलएलपी के केस पे है। ठीक है, चलिए। Only Form 2 is missing. है फॉर्म 2 Form ऊपर आ 2. गया ना, रिटर्न कम्युनिकेशन बाई प्रपोज्ड आईआरपी। Okay, same. Okay, got it. फॉर्म 2 हो गया ना? हाँ जी, हाँ जी। वो ये तो हो गया एक सारे। उसके बाद में फिर रेगुलेशन में फॉर्म आ गए। ये तो अभी थे रूल्स वाले फॉर्म। अभी जो थे फॉर्म ये थे एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रूल्स के अंदर। अभी आ गए रेगुलेशंस में। रेगुलेशन में फॉर्म है रेगुलेशंस आईआरपी फॉर कॉर्पोरेट पर्संस, क्रेडिटर टू बियर कॉस्ट ऑफ प्रूविंग क्लेम। ठीक है, तो रेगुलेशन 6 है, इसके अंदर फॉर्म ए है फॉर पब्लिक अनाउंसमेंट। अब पब्लिक अनाउंसमेंट में सीआईआरपी और लिक्विडेशन में क्या डिफरेंस है? पब्लिक अनाउंसमेंट सीआईआरपी में भी होती है, पब्लिक अनाउंसमेंट लिक्विडेशन में भी होती है। लेकिन जो सीआईआरपी में अनाउंसमेंट होती है उसमें लिखता है एस्टिमेटेड डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सीआईआरपी प्रोसेस। ऐसे अगर फास्ट ट्रैक में होगा तो उसमें भी लिखेगा वो एस्टिमेटेड डेट ऑफ क्लोजर, लेकिन लिक्विडेशन में नहीं लिखता एस्टिमेटेड डेट ऑफ क्लोजर ऑफ लिक्विडेशन प्रोसेस। ठीक है, ऐसे ही वॉलंटरी लिक्विडेशन में भी नहीं लिखते। ये थोड़ा ध्यान में रखना है अपने को। ठीक है जी। Yes. और क्या पीपीआईआरपी में होता है पब्लिक अनाउंसमेंट? No, what is that you said? You to write estimated? Actually, Estimated. what I have said is that in case of CIRP process, in case of insolvency resolution process, whether normal CIRP or fast track, you have to write the estimated date of closure of the process, right? Okay, estimated. But Closure. that you need not write in case of liquidation or voluntary liquidation. Okay, got it. Another thing regarding public announcement, whether in case of PPIRP you have to do public announcement. No, sir. No, no. So what is to be done in that case? Uh, Form P9. Form P9, very good. Form P9 will be the notice issued to the creditors whose names have been given by the CD. And suppose a particular name is not included in that list, फिर क्या होगा? उस creditor के पास क्या right है? भाई PPIRP में क्या होता है? The list is provided by the CD only in Form P2 and then P10, है ना? और वही Form P10 अपडेट करता है RP. My question is, suppose somebody's name is excluded from that list by CD. आरपी को तो पता नहीं चलेगा। आरपी ने तो क्या किया, जो भी लिस्ट सीडी ने दी उनको नोटिस भेज दिया। ठीक है, कि भाई यू अपडेट योर क्लेम्स। तो व्हाट इज द नीड फॉर सेंडिंग दैट नोटिस? टू अपडेट देयर क्लेम्स। नाउ सपोज समबडीज नेम इज नॉट इंक्लूडेड, तो उस केस में व्हाट इज द राइट अवेलेबल टू दैट क्रेडिटर? दिस इज माय क्वेश्चन So इन CD केस will ऑफ be पीपीआईआरपी। CD will be held responsible. अच्छा, नहीं सीडी ठीक है, तो सीडी में who will be held responsible? Suppose there are 4 directors and one director says I don't know about this thing, I was not involved in this, then whether he will be liable? सर अगर उसकी कंसेंट नहीं है तो लायबल नहीं होगा। हाँ, अगर इफ इट वाज इशूड विदाउट हिज नॉलेज और कंसेंट देन इज नॉट लायबल। और फिर इसके लिए कहां अप्रोच करेगा क्रेडिटर? वेदर टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और कॉम्पिटेंट कोर्ट? सर अगर पैसे लेने हैं तब तो कोर्ट में जाएगा फॉर उसके लिए पैसे ही लेने फाइन। हैं उसको तो। हाँ अगर वो पैसे लेने हैं कॉम्पिटेंट कोर्ट, वर्ड लिखा है कॉम्पिटेंट कोर्ट, तो कोर्ट में जाएगा सर। इसके लिए वो कॉम्पिटेंट कोर्ट में जाएगा, कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन ऐसा लिखा है। यस ठीक है, सर। चलिए। नाउ फॉर्म डबल है रिटन कंसेंट टू एक्ट एज आरपी। ठीक है, और बी में क्या है? बी, फॉर्म बी है प्रूफ ऑफ क्लेम बाय ओसी एक्सेप्ट वर्कमैन एंड एम्प्लॉयज। फॉर्म सी है क्लेम बाय एफसी। फॉर्म सी इज क्लेम बाय एफसी ने क्लास। ये सीए फॉर्म कौन यूज करता है? फॉर्म सी इज यूज्ड बाय हुम? जी ना, क्लास ऑफ क्रेडिटर होम बायर्स वाले। हाँ ठीक, होम बायर्स के अलावा और कोई एग्जांपल? होम बायर्स के अलावा हम्म, बैंक्स वाले। बैंक नहीं नहीं, बैंक तो नहीं सी नहीं, यूज बैंक तो करेगा ना। इसमें जाएगा। राइट राइट। सीए में और कौन यूज करेगा? 21(6)(a) में दिया हुआ ना, सेक्शन 21 सब सेक्शन 6 ए।
डिपोजिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स, Yes, yes, debenture holder and तो जिनकी भी security टर्म्स एंड कंडीशन depositors. सेम है रिगार्डिंग पेमेंट एंड रीपेमेंट, ऑल दे विल यूज फॉर्म सी ए। ठीक ठीक है, Yes, sir. सेक्शन 21(6)(a) है, तो आप इसमें Yes. लिख भी सकते हो रेफरेंस भी, फॉर रेफरेंस पर्पस सेक्शन 21(6)(a), कैपिटल ए। ठीक है जी, उससे आपको ध्यान में आ जाएगा। 1 second. What you told? Debentures, sir? Yes, debenture holders and deposit holders. And all this reference is given in section 21(6) capital A. Capital A. Section 21 subsection 6 capital A. Because I'm just writing. That's why. No If you go issues, no little bit- issues. Ah. if you go a little bit slow, that would be great. Because I can No, no, write no. it. Okay, okay. Yeah. नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। सो नाउ फॉर्म डी, फॉर्म डी इज प्रूफ ऑफ क्लेम बाय ए वर्कमैन और एन एम्प्लॉय। नाउ सपोज देयर इज अ पार्ट टाइम एम्प्लॉय, देन वो क्या क्लेम फाइल करेगा अपना? भाई एग्जामिनर विल ट्राई टू कंफ्यूज यू, वो बोलेगा देयर इज अ पार्ट टाइम एम्प्लॉय, नाउ ही कीप्स ही कम्स टू द फर्म फॉर राइटिंग अकाउंट्स, राइट? Hmm. तो विच फॉर्म ही विल यूज? D. नो, ओसी वाला सर, है ओसी वाला, ओसी वाला कौन सा? फॉर्म बी Other सर, claim वाला. नहीं फॉर्म बी। फॉर्म बी। हम्म। Okay. D करेक्ट। So, the basic question here is whether workman or an employee is defined here or not, right? So, is there any definition of workman or employee in IBC? Definition वो है क्या? इंस्टीट्यूट्स एक्ट्स में दिया हुआ है, उसके अनुसार पढ़ना है। Right. So, the definition is given in section 3, and section 3 refers us to Industrial Disputes Act. So, if you see, can you cite the particular section? सेक्शन 3 क्या है? सेक्शन 3 सबसेक्शन 36 है, क्या है? एक second. 36 है, मुझे भी याद हो गया। वर्कमैन, सही है सर, परफेक्ट परफेक्ट सर। workman shall have the same meaning as assigned to it in clause S of section 2 of Industrial Disputes Act. Suppose there is an employee of a prison, employee of prison है, तो क्या उसमें आएगा, वर्कमैन में आएगा नहीं आएगा? नो, नो सर। नहीं आएगा। ठीक है, कोई पुलिस एम्प्लॉय है तो वो कहाँ आएगा? वो नहीं आएगा इसमें सर, वो हैं? आर्म्स वाले अलग है। वो भी वर्कमैन में नहीं आएगा। वर्कमैन में क्या है? एम्प्लॉयज ऑफ प्रिजन, एम्प्लॉयज ऑफ पुलिस, एयरफोर्स, मिलिट्री, नेवी, ये सारे दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ वर्कमैन। क्यों? यहां वर्कमैन क्या बोलता है? वर्कमैन शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइन्ड टू इट इन क्लॉज एस ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। एंड इफ यू गो टू क्लॉज एस ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, देन यू विल फाइंड दैट देयर इज एक्सक्लूजन। वो एक्सक्लूजन में क्या कहता है? एम्प्लॉयज ऑफ मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस, प्रिजन, ठीक है? और फिर इफ somebody is working in a administrative capacity, then they are not included under workmen, so they are included under employees. Now my question is कि there could be a case, भाई देखो, अगर तो वर्ड यूज किया है एम्प्लॉय, तो फिर वो एम्प्लॉय वाला फॉर्म भरेगा। ठीक है, एम्प्लॉय के लिए कौन सा फॉर्म है? डी। अगर वो कह देता है पार्ट टाइम एम्प्लॉय, तो भी एम्प्लॉय में आएगा वो। लेकिन अगर वो बोलता है फ्रीलांसर है, तो फ्रीलांसर फिर फॉर्म बी में आएगा। अगर आपके क्वेश्चन में कहता है देयर इज ए पार्ट टाइम एम्प्लॉय हु कम्स टू द ऑफिस फॉर राइटिंग अकाउंट्स, सो विच फॉर्म ही विल यूज? अगर वर्ड एम्प्लॉय यूज कर लिया तो फॉर्म डी, अगर वर्ड एम्प्लॉय यूज नहीं किया तो फॉर्म बी। बेसिकली फ्रीलांसर है तो फॉर्म बी। सपोज देयर इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही इज रेंडरिंग सर्विसेज, वो कौन सा फॉर्म भरेगा? रेंडरिंग सर्विसेज, तो सर रेंडरिंग सर्विसेज बी, टू दी सिटी। बी सर। हाँ बी, ठीक है, बस क्लियर है। अगर वर्कमैन एम्प्लॉय है तो फॉर्म डी है, अगर वर्कमैन एम्प्लॉय नहीं है, फ्रीलांसर है, तो फिर फॉर्म बी है। फॉर्म ई इज प्रूफ ऑफ क्लेम बाय ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कमैन एंड एम्प्लॉयज, ये भी ठीक है। एंड फॉर्म ई इज टू बी साइंड बाय whom? Suppose there are 1000 workers in the company, right? Now form E they are filing,
तो फॉर्म ई के साथ सारे एम्प्लॉयज का डिटेल जाएगा, कैसे होगा? फॉर्म ई कैसे भरा जाएगा? देखा फॉर्म ई? फॉर्म ई देखा है क्या आपने कभी? नहीं देखा? मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज देर आर 1000 एम्प्लॉयज, तो सबका डेट इंडिविजुअल उस फॉर्म के साथ लगाना है, यस और नो? यस, यस सर, एनेक्सर लगाना है सर, अलग से एनेक्सर है सर। हम्म, ये आ गया आपका फॉर्म ई। तो इसमें पूरा डिटेल्स है। एनेक्सर में देखिए, इफ यू सी द एनेक्सर, डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय और वर्कमैन, 1 2 3 4, नेम ऑफ एम्प्लॉय, वर्कमैन, आइडेंटिफिकेशन नंबर, पैन, पासपोर्ट, टोटल अमाउंट ड्यू, पीरियड फॉर विच अमाउंट ड्यू। तो ऑल दिस डिटेल्स यू हैव टू गिव, एंड दिस इज टू बी साइंड बाय whom? ये फॉर्म कौन साइन करेगा? क्लेमेंट। हाँ, क्लेमेंट। ठीक है। पर सर ये एफिडेविट करके लगाना है सर, फॉर्म ई सर, एफिडेविट, हैं? एफिडेविट करना है सर, आई सोलोमनी। कहा? यहाँ तो नहीं है, इसमें नहीं है। ओके सर, प्लेन ही फॉर्म है, सिंपल फॉर्म ही बचना है सर। एफिडेविट फॉर्म नंबर 6 के साथ है। 6 के साथ है, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है जी, चलिए ये भी हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा है आपका? फॉर्म एफ। फॉर्म एफ इज प्रूफ ऑफ क्लेम बाय क्रेडिटर्स अदर देन एफसी एंड ओसी। ये अदर अदर देन देन एफसी एफसी, ओसी कौन से क्रेडिटर हो जाएंगे हमारे? एनी एग्जांपल? एडवांसिस सर, एडवांसिस वाला आपने ही बोला था सर। एडवांसेस, राइट। सो इफ देर आर क्लीन एडवांसेस, ठीक है, तो इन दोज केसेस ही विल फिल अप फॉर्म एफ। एफ। एंड फॉर्म एफ ए इज फॉर withdrawal विड्रॉल। with अच्छा, विड्रॉल, 90%. विड्रॉल के लिए कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती है? Sir, विड्रॉ before, फर्स्ट क्वेश्चन, वेदर विड्रॉल कैन बी मेड बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीओसी, यस और yes, नो? sir. Yes, Yes, sir. sir. यस, यस। वेरी गुड। ठीक है। तो विड्रॉल कैन बी मेड even before constitution of COC. In that case, the applicant through RP will file the application, right? And in case COC is constituted, then the COC will deliberate in the meeting, and with 90% majority, they will approve or reject the application for withdrawal. And then RP will file the application. ठीक है, along with bank guarantee. Form G, invitation for expression of interest. Form H, compliance certificate by RP. ठीक है। अच्छा, उसके बाद में फॉर्म ए बी। फॉर्म ए बी क्या है? कंसर्न बाय आरपी। हाँ, कॉन्सेंट बाय आरपी फॉर बीइंग ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्लास ऑफ क्रेडिटर्स। Creditors. सर अभी फॉर्म क्या जी हो के बारे गया? में। अभी ना एक और कॉन्सेप्ट आ गई, फैसिलिटेटर की। तो हम्म। वो जो फैसिलिटेटर है, ही ऑल्सो हैज टू बी एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। तो वो फैसिलिटेटर के लिए भी कोई फॉर्म है क्या? आप पहले, मालूम है आपको कि फैसिलिटेटर की भी कॉन्सेप्ट है कुछ या नहीं? हाँ, यस Yes, सर। sir. मालूम है ना? हाँ, Yes, sir. कौन से रेगुलेशन में लिखा है ये? 16C सर, हैं? 16 सी ऑफ सीआईआरपी। 16C। हाँ सर। तो पढ़ू मेरा सर। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम्म। आपने फैसिलिटेटर अपॉइंट कर लिया, तो अब ये हम्म। जो फैसिलिटेटर है, क्या हम्म। इसको भी फॉर्म भरना है? नो सर, इट विल डायरेक्टली रिपोर्टेड टू आईआरपी और आरपी। ये ये हो गया आपका रेगुलेशन 16C। हम्म। तो रेगुलेशन 16C में बोलता है, अपॉइंटमेंट ऑफ फैसिलिटेटर शैल बी कंसिडर्ड ओनली। After the first meeting of the committee. Whether he has to be an insolvency professional, या he even need not be an insolvency professional, facilitator। Sir, insolvency professional. तो यस, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, ऑब्वियस। तो ये वेदर इट विल बी कवर्ड अंडर दिस असाइनमेंट में कवर होगा ये चीज या नहीं होगा? फैसिलिटेटर वाला जो रोल है, ये असाइनमेंट में कवर होगा नहीं होगा? नहीं सर, नहीं होगा सर, नहीं होगा, क्यों? नॉट अ फुल टाइम जॉब सर, नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी। कि नॉट कैजुअली। यस सर, ओके सर। भाई और वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है। अच्छा, इसको आईबीबीआई नोटिस इशू कर सकती है कि नहीं कर सकती? वो तो है सर। सकती है सर।
But he is not IRP or what he. No, but he is an insolvency professional, na? Hmm. So if he is an insolvency professional, Mhm. the basic question is whether he will be subject to regulations by IPA or not. IPA के साथ होगा नहीं, उसका कनेक्शन ही यस नहीं सर। होगा। सर मतलब होना ही चाहिए, और फॉर्म होगा सर, आईपीए के साथ उसका होगा, और तो अब एक फॉर्म 2 और भी सवाल है, जाएगा सर। ये जो लेकिन सर। आईपीए कुछ परसेंटेज ऑफ फीस देता है, हम्म। अपना देता है ना हाँ हाँ हाँ। आईबीबीआई को हाँ 0.25%। हाँ हाँ। आजकल कितना दे रहा है? 0.25 कौन है? 1 सर, 1% सर। 1% दे रहा है ना। तो अब हाँ मेरा क्वेश्चन ये है, फैसिलिटेटर भी क्या 1% देगा नहीं देगा? हाँ सर, देगा ही देगा सर। ऐसी है। थोड़ा सा ना इस पे थोड़ा सा और रिसर्च कर लीजिए, और इस पर एक पूरा एक बना दीजिए कंप्लीट। पक्का सर, तो पक्का। यहाँ पर क्या है, यहाँ ना थोड़ा डाउट है, कुछ लिखा नहीं है बुक के अंदर, हम्म। और वो वैसे ही सवाल पूछता है जो बुक में नहीं लिखे होते। सही है सर। तो थोड़ा सा इसको आप या तो आईपीए की साइट पे जाके देख लो, आईपीए की साइट हम्म पे भी मिल जाएगा आपको। हम्म। जैसे उसमें कॉलम बना रखे होते हैं ना, इंसॉल्वेंसी हम्म। प्रोफेशनल, लिक्विडेटर, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, बैंक्रप्सी ट्रस्टी, है ना, ऐसे ही वो फैसिलिटेटर भी बना दिया होगा उसने। ओके सर। ये दोनों सेम और डिफरेंट, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव एंड फैसिलिटेटर? नो, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव इज लाइक मॉनिटर एंड फैसिलिटेटर इज लाइक सब मॉनिटर। ओके पर ओके सर, ओके। ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव होने के लिए भी आईपी इज कंपलसरी हाँ अपॉइंटेड। बिल्कुल है। आई ओके सर। तो एक्चुअली फॉर एवरी एआर देयर कैन बी 5 फैसिलिटेटर्स मैक्सिमम, ओके। and his fees will be 20% of the fees which is payable to the AR. And he will facilitate meeting between the creditors of that particular class and AR. So this facilitator will be appointed as a meeting to meeting. Is it No, like no, that no. or Once appointed, he will be coordinating till the closure of the CIRP. Acha. And he can be removed also. So regulation 16C is there for this. If you see regulation 16C of CIRP regulations, then it clearly says who can be appointed as facilitator. So first condition is number of creditors in a class exceeds 1000. This is the first condition. So if the number of creditors is less than 1000 or even 1000, then facilitator will not be appointed. Second is it can be appointed by the committee only, right? And he has to be other than the IRP, RP and AR or any other person as facilitator for a subclass within the creditors in a class. So what they will do? They will form a subclass within a class, right? Okay. And fees for each subclass shall be 20% of the fees. Roles and responsibilities are also there. Okay, what he will do. Sir, on the direction of COC, IP will appoint facilitator, right? Right. हाँ, अब इसमें एक और बात भी है, यहाँ कोई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का रोल भी नहीं दिया हुआ। यहाँ पर देर इज नो मेंशन ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कि भाई ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ फैसिलिटेटर इज ऑल्सो टू बी रूटेड थ्रू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ऐसा नहीं है। And there is a provision for replacement also. So committee may replace the facilitator on the recommendation of a majority of the members of the subclass. So we have to find answers to a few questions. Number one, whether it will be covered under a number of assignments which an IP can handle, whether he will be paying 1% of the fees, and whether his for his appointment approval from adjudicating authority is to be taken. Law is silent on this. ठीक है, बट थोड़ा सा सर्च करिएगा इस मैटर पर। ठीक है जी, हम्म। चलिए आगे चलते हैं। अब हो गया रेगुलेशंस आईपीए। ये आईपीए वाला अभी करना है या बाद में करें? अभी आईपीए वाला तो पढ़ा नहीं हमने। इसे बाद बाद में में करेंगे, बाद में करेंगे।
है ना। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम लिक्विडेशन तक पढ़ लेते हैं, जितना हमने पढ़ा हुआ उतना कर लेते हैं, है ना। Yes, बराबर sir. सर। ये हो गया। एनुअल स्टेटमेंट ऑफ प्रोफेशनल फीस, फॉर्म ई। एनुअल स्टेटमेंट ऑफ टर्नओवर, एक बार इसमें देख सकते हैं आप, फॉर्म ई के अंदर देख लीजिए, एनुअल स्टेटमेंट ऑफ प्रोफेशनल फीस ऑफ आईपी। इसके अंदर क्या फैसिलिटेटर में लिखा हुआ है क्या? ये वाला फॉर्म देख लीजिए एक बारी। ये आपको आईपी रेगुलेशंस में मिल जाएगा। ये बल्कि याद नहीं मिलेगा आपको, आईपी ए रेगुलेशंस में मिलेगा। ये फॉर्म मिला जी आपको, में फॉर्म ई। हाँ, फॉर्म जी मिला सर। फॉर्म ई देखिए, फॉर्म ई। फॉर्म ई क्या लिखा ना, एनुअल स्टेटमेंट ऑफ प्रोफेशनल फीस। मिला सर। मिल गया ना। तो हम्म इसमें देखो कोई फैसिलिटेटर भी लिखा है क्या? अदर ही फेनी में आ जाएगा ना सर। इसके अंदर तो कुछ लिखा नहीं है ऐसा। नहीं सर, सर अदर अदर सर, अदर विल इंक्लूड फैसिलिटेटर सर, नॉट हम्म स्पेसिफाइड, अदर में आ जाएगा सर। हाँ, क्योंकि परसेंटेज देना पड़ेगा ना इसको। सही है सर, वो तो बोर्ड के साथ उसका टाई अप है तो देना पड़ेगा सर। बोर्ड में मेंबरशिप देती रजिस्ट्रेशन है। तो करा ही रखा है इसने। हाँ सही है सर, डेफिनेटली सर। ठीक है ना। हाँ। तो मैं तो कहूंगा नरेंद्र जी, आप इतना पढ़ाई कर रहे हो, एक केस स्टडी बना दो इसके ऊपर ही। एक केस स्टडी खाली फैसिलिटेटर पे ही बना दो। पक्का सर, पक्का सर। आप बोलो तो कर उसमें देंगे। क्या बनाना है मैं बता देता हूं कि देर इज अ केस ऑफ होम बायर या रियल एस्टेट कंपनी इज इनटू सीआईआरपी। द नंबर ऑफ होम बायर्स इज 2000। नाउ प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन दिस केस, हाउ मेनी फैसिलिटेटर्स कैन बी अपॉइंटेड, है ना। What is the fees to be paid to the facilitators? Whether these facilitators they will be required to pay certain percentage to the board also. ठीक है। Who is the appointing authority for facilitator? Whether COC or RP or adjudicating authority. इस तरह से करके 5-7 क्वेश्चन बना दो। ठीक है। तो थोड़ा सा इसको और डिटेल में देखते हैं। सही है सर। ठीक है जी। विद द हेल्प ऑफ एआई सर, एआई में पूरा अपलोड करेंगे सर, आईयू का सर, और उसके बाद उसकी हेल्प लेके हाँ, जो भी और करो। रेगुलेशन। हाँ ठीक है। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है सर। वो तो ग्रुप इसलिए नेक्स्ट सर। बना रखा है, ग्रुप पे डिस्कस कर लो। हाँ जी। हाँ नेक्स्ट, यस एआई भी सर। बहुत बढ़िया आंसर नहीं देता है, एआई पे ज्यादा रिलाई मत करो। अपना वर्किंग करो, वो ज्यादा अच्छा है। नहीं सर, थोड़ा ग्रामेटिकल सेंटेंस में वो सब अच्छा है सर। हम्म। ग्रामेटिक। चलिए, ये भी हो गया। उसके बाद में ये प्रूफ ऑफ क्लेम, फॉर्म्स फॉर प्रूफ ऑफ क्लेम। ओसी, फॉर्म बी फाइनेंशियल क्रेडिटर, फॉर्म सी होम बायर, फॉर्म सी ए वर्कमैन एम्प्लॉय, फॉर्म डी एआर ऑफ वर्कमैन एम्प्लॉय, फॉर्म ई अदर क्रेडिटर्स, फॉर्म एफ। ये अच्छा भी हो सर, गया। ये ना ये पूरा आप साइड में एक साथ स्क्रॉल करोगे ना, वो सीआरपी फास्ट ट्रैक लिक्विडेशन, सब में वॉलंटरी से नहीं। लिक्विड, हाँ सब में सेम है वो। टोटली एब्स्ट्रैक्ट है वो, समराइज। हम्म। एक सेकंड सर। हाँ, ये वाला, हाँ। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, तो फास्ट ट्रैक में वो नहीं है ना। फास्ट हाँ। ट्रैक में ये होम बार वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। हम्म यस सर। पी P1 to 14 है सर उसमें।
हम्म। और लिक्विडेशन में एक एक फॉर्म नीचे चला गया, जो बी था वो सी बन गया, इस तरह से। मतलब लिक्विडेशन में रेगुलेशन देखो का ना, रेफरेंस मिल गया दो। सी बन गया डी, डी बन गया ई, ई बन गया एफ, एफ बन गया जी, इस तरह से। यस सर। लिक्विडेशन में एक एक स्टेप नीचे चला गया। यस सर। और ये वॉलेंटरी लिक्विडेशन है। वॉलेंटरी लिक्विडेशन में फिर वही जो सीआईआरपी वाला सेम ही है। यस। और मोड लिखा है। हैं? मोड मोड ऑफ। हाँ, मोड भी है, हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो बढ़िया है ना ये, तो है ना। ये फाइन है, हम्म, बराबर। और रेगुलेशन का रेफरेंस भी इजीली विल गेट। हाँ, रेगुलेशन का रेफरेंस भी है। ठीक है जी, चलिए। अब ये हो गया हमारा, इतना पढ़ लिया हमने। अब हम दूसरी साइड पे चलते हैं। एक साइड हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम दूसरी साइड पे चलते हैं। ये यहाँ क्या लिखता है, ये वाला। फास्ट ट्रैक का है। ये दे दिया फास्ट ट्रैक में। हम्म, तो फॉर्म ए हो गया पब्लिक अनाउंसमेंट के लिए, फॉर्म बी हो गया प्रूफ ऑफ पेमेंट, ये हो गया तो डी, ई, एफ, जी, ये रेगुलेशंस के लिए आ गए आपके। एनुअल स्टेटमेंट ऑफ टर्नओवर, ये फास्ट ट्रैक के लिए फॉर्म है आपके। ठीक है ना, तो कंपैरिजन हो गया पूरा फॉर्म्स का आपका ये। ठीक है, तो ये वाली शीट तो कंप्लीट हो गई आपके, यस इसमें सर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अब ये विड्रॉल फ्रॉम कॉर्पोरेट कौन? वॉलंटरी लिक्विडेशन अकाउंट। अच्छा, एक बात और बता दो कि वंस ए कंपनी इज इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन, वेदर दे कैन विड्रॉ द एप्लीकेशन। यस सर, यस, वो तो आपने बताया था सर। हाँ, तो ऐसे देर इज हम्म, नो एक्सप्रेस प्रोविजन इन द लॉ, बट लाइक दे इनिशिएटेड वॉलंटरी लिक्विडेशन विद स्पेशल रेजोल्यूशन और रेजोल्यूशन, है ना। अकॉर्डिंगली इफ दे वांट टू विड्रॉ, दे हैव टू पास द सेम रेजोल्यूशन, राइट। चलिए। Is तो there ये any timeline? है Is there any timeline? टाइमलाइन फॉर व्हाट? I mean, for विड्रॉल। withdrawal. नो नो नो, विड्रॉल कैन बी मेड नहीं, एनी टाइम बिफोर द क्लोजर। हाँ, I mean, विद द हेल्प स्पेशल रेजोल्यूशन सर, पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ सीडी और ये हो मेंबर। गया। तो ये वाला फॉर्म, ये तो हमने पूरा शीट कर लिया। अब हम आगे यस। अगली शीट पर चलते हैं, नेक्स्ट। ये शीट 1 और 4 हो गया। नाउ शीट 2 और 4। शीट 2 और 4 देखते हैं क्या बोलते हैं। ये शीट 2 और 4 है। तो की टाइमलाइंस अक्रॉस ऑल प्रोसेसेस, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ आरपी, अपॉइंटमेंट ऑफ आरपी के लिए तो कोई टाइमलाइन है या नहीं है? अपॉइंटमेंट ऑफ आरपी कब तक करना है आपको? Actually, here you have to see whether you are appointing IRP or whether you are appointing RP. If you are appointing IRP, then you have to get form 2 signed from him. ठीक है ना। जब if you are filing an application under section 7 or section 10, then you have to mandatorily give the name of the IRP, है ना। तो you will get the form 2 signed before even filing the application. और OC के केस में the adjudicating authority will finalize the name, है ना, in consultation with the board. इसीलिए वो सारी राम कहानी यहां लिखी नहीं है। डिमांड नोटिस बाय क्रेडिटर, डिमांड नोटिस के लिए कितना पीरियड है? 10 days। 10 days। और आपका फास्ट ट्रैक में कितना पीरियड है? फास्ट। फास्ट ट्रैक। सर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा है, बाकी। लिखा ना पहले 14 डेज है। फास्ट ट्रैक में 14 डेज है। आपके सामने चार्ट है ना, यस सर, यस सर। प्रिंट आउट है आपके सामने। लास्ट लाइन देखो, जहां 10 लिखा उसी लाइन में लास्ट में जाओ। प्रिंट अच्छा आउट है सर, ना ये आपके जो सामने। कॉलम, हाँ हाँ सर, मैं ऐसे समझी, जो but लास्ट कॉलम है here, ना, IRP, yeah, बोथ yeah, क्रेडिटर एंड गारंटर। I also assume same thing. It's a different column.
IRP ठीक है both सर, तो there. यहाँ पे हेड कर डालेंगे, फास्ट ट्रैक व एग्जिट उसके नीचे कर डालेंगे, राइट? किसका? This 14 and 7 is in the IRP both creditor अच्छा, guarantor, ये that column. एक्चुअली इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी की बात कर रहा है ये Hmm. इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी की बात कर रहा। तो इन केस ऑफ इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी द पीरियड इज 14 डेज। और फास्ट ट्रैक में कितना पीरियड है? फास्ट ट्रैक में भी तो पीरियड होगा ना? सर उसमें भी तो वही आएगा ना जो CIRP में था, अगर नहीं कुछ नहीं नहीं हुआ। आएगा नहीं, चेक कर लो भाई, ऐसे नहीं। फास्ट ट्रैक के रेगुलेशंस में चेक कर लो, ऐसे अंदाजा नहीं लगा सकते। किताब आपके सामने है, देख लो। सर 7 days है। हम्म 7 डेज कहाँ लिखा है? मैम रेगुलेशन बता दो तो हम भी थोड़ा देख लें। सर रेगुलेशन 19 है, नोटिस फॉर मीटिंग्स ऑफ द कमिटी। नहीं देखो, ऐसा है, आप समझो, फास्ट ट्रैक में कोई एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रूल्स डिफरेंट नहीं है, वही सेम रूल अप्लाई होते हैं जो नॉर्मल CIRP में होते हैं। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म सेम है, सिर्फ रेगुलेशंस दे रखे हैं फास्ट ट्रैक के। मेरा क्वेश्चन ये है कि वेदर इन केस ऑफ फास्ट ट्रैक देर आर सेपरेट एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रूल्स, द आंसर इज नो। जो सेम है। एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रूल्स है वो नॉर्मल CIRP और फास्ट ट्रैक दोनों के लिए सेम है। वो क्या लिखता है, Chapter 2/Chapter 4, ऐसा लिखता है ना फॉर्म में, यस सर। तो वो है। तो जब फॉर्म ही सेम है तो नेचुरली कंडीशंस भी सेम ही होंगी, क्यों? यस सर। तो इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी में आपका 14 डेज है, बाकी इसमें फास्ट ट्रैक में भी वही 10 डेज ही आएगा। यस सर। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू आस्क द बोर्ड, 7 डेज का टाइम है, एंड बोर्ड फास्ट शैल कंफर्म विद इन 10 डेज। एक जगह 7 डेज है बोर्ड, वो कहां पर है? सेक्शन 97 में, ठीक है। 7 ओनली इन केस एप्लीकेशन इज मेड थ्रू RP, इन ऑल अदर केसेस इट्स 10 डेज, ठीक है। सो इन केस ऑफ सेक्शन 97, कल हम पढ़ रहे थे ना, सेक्शन 97। सेक्शन 97 में 7/7 है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ जी। चलो जी, ये भी हो गया। एंड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू रिस्पॉन्ड, दैट विल रिस्पॉन्ड विद इन 14 डेज। commencement date is date of the order of the adjudicating authority. अच्छा, in case of liquidation, whether the adjudicating authority makes any order, issues any order or not? In case of liquidation, चलो another question, whether COC can recommend liquidation? यस सर। में Hmm. And whether a form has to be filed for initiating this liquidation process. Like for if you want to initiate CIRP, you have to fill up a form, right? If you want to initiate liquidation, whether you have to fill up any form नो सर। for initiating liquidation, नो सर। then how liquidation will commence? Sir, it is an order passed by the adjudicating Right. authority. So it is deemed to have commenced from the date of the order passed by the adjudicating authority. Achha, in case of voluntary liquidation, whether the adjudicating authority passes any order for commencement of voluntary liquidation? In case No, of sir. voluntary liquidation, whether the Authority. adjudicating authority passes any order
for commencement of voluntary liquidation or not? No, sir. No. Very No, good. no. So in that case also, the date of passing of the resolution or special resolution is deemed to be the date of commencement of voluntary liquidation. Right? Sure. Public notice T plus 3. In case of liquidation, it is T plus how much? T+5 sir. T plus 5. Hmm. Very good. That's और यहाँ पर कितना है? PPIRP में PPIRP में T+2 T plus 2. ठीक है. हाँ, और फास्टैग में T+3 सर. अच्छा. इंडिविजुअल और T+7 T+10 सर. हम्म, इंडिविजुअल इंश्योरेंसी बैंक्रप्सी में T+10 सर. हम्म. CIRP में 3 है सर. क्रेडिटर सबमिट क्लेम, आरपी टू प्रिपेयर लिस्ट. ठीक है. तो ये सब देख सकते हैं अपने हिसाब से. चलो और देखते हैं. फर्स्ट सीओसी या एमओसी मीटिंग. एमओसी क्या हुआ ये? मेमोरेंडम ऑफ चेंजेस सर. नहीं नहीं, ऐसा कोई होता है क्या एमओसी? एमओसी बैंक ऑडिट, तो बैंक ऑडिट में आते हैं सर. अरे बैंक ऑडिट नहीं, यहाँ यार आईबीसी पढ़ रहे हो, बैंक ऑडिट कहाँ गए? मार्च का महीना है सर. चलो देखना जरा क्या है एमओसी, क्या लिखा है ये तो 7 days है ना? Yes. इंटीमेशन अबाउट एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ क्लेम. T+67. ये T+67 क्या है? T+67 मतलब सर T+67 यानी फ्रॉम द डेट ऑफ लिक्विडेशन टू 67 डे विल बी ये इंटीमेशन अबाउट एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ क्लेम्स है ना. इन केस ऑफ लिक्विडेशन, acceptance intimation you have to give within 67 days, because 30 days you get for receiving claims, you get 30 days for verification of claims, and then within next 7 days you have to inform the creditor about acceptance or rejection of the claim. तो ये लिखा है इसमें. उसमें लिखा है सर विड्रॉल मॉडिफिकेशन ऑफ क्लेम इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ CIRP. तो There is no specific provision actually. Like in case of liquidation, they have written that the creditor can modify or vary the claims. But ऐसा कुछ लिखा नहीं है CIRP में. अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यू और प्रिपरेशन ऑफ ये प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम देख लो, 54th डे. ठीक है ये 54 था. हाँ जी. पहले था सर ये 54 डेज, अभी नहीं अच्छा, है. अब चेंज हो गया ना ये. तो अब कितना हो गया ये? 95 सर. तो इसको चेंज कर देंगे ना, इसीलिए मैंने एक्सेल शीट मंगा ली है, ये इसको चेंज कर देंगे. $54 has become $95. ये कौन से कॉलम में आ रहा है? ये सेकंड शीट है, कौन सी शीट है ये? अच्छा, ये है ना सर CIRP वाले कॉलम में है, सेकंड कॉलम में. Column B आ रहा है. सेकंड कॉलम लिक्विडेशन, वॉलंटरी लिक्विडेशन. नहीं सर उसके CIRP. भी पहले, उसके पहला कॉलम. अच्छा CIRP. ओके ओके ओके. अच्छा ये 54 डे. ठीक है, इसको चेंज कर देंगे. ठीक है, इसको कितना कर देना? 95 डेज. 95 डेज. ठीक है. और इनवाइटिंग प्लान्स. इनवाइटिंग प्लान्स सर 60 डेज है. नहीं, 60 Perfect. डेज में तो आपको वो करना है ना, यू हैव टू इशू फॉर्म जी. हाँ, फॉर्म जी. यस सर, 60 डेज. फॉर्म जी 60 डेज है ना. ठीक है, तो ये 60 डेज हो जाएगा ये भी. सबमिशन ऑफ प्लान्स 15 डेज मिनिमम. तो ये हमारे को टाइमलाइंस के हिसाब से चेंज करना होगा ये. तो सबमिशन ऑफ प्लान्स, इसके लिए बेस्ट वे इज टू ओपन रेगुलेशन 40A. एक बार रेगुलेशन 40A खोल लो आप, CIRP का.
हम्म, yes sir. तो फॉर्म जी हो गया T+60। ठीक है। सबमिशन ऑफ प्लान्स, सबमिशन ऑफ प्लान्स हो गया आपका, सबमिशन ऑफ EOI है बेसिकली T+75। इवेल्युएशन ऑफ प्लान्स 10 days इश्यू, ऑब्जेक्शंस 5 days, 105 days, यहां तक तो ठीक है। फाइनल लिस्ट भाई, फाइनल लिस्ट आपको कब देनी है? 10 days। 100 days में देनी है ना? हाँ सर, 100 हो जाएगा। फाइनल लिस्ट में हो जाएगा 100। ऑब्जेक्शंस 5 days है। सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शंस T+90 हो गया यहाँ। ऑब्जेक्शंस में हो जाएगा 90th डे तक। कितना है? T+90। इसको चेंज करना होगा है ना? तो एक बार चेंज करके काजल जी आप भेज दोगे मेरे को ये, यस सर। है ना? एक बार चेंज कर लेना फिर भेज देते हैं। यस सर। चलो, तो ये डेज है, एक बार इसको जस्ट रिव्यू कर लीजिएगा। नरेंद्र जी आप भी रिव्यू कर लीजिएगा क्या करना है इसमें, है ना? Yes sir. Yes. एक बार इसको रिव्यू करके फिर करते हैं। इससे अगले वाला शीट कौन सा है? नेक्स्ट वाला हाँ, सर ये कंटिन्यू है, COC मीटिंग वगैरह सब है। एक पेज, फोर्थ पेज में ये COC वोटिंग थ्रेशोल्ड वगैरह सब है, बाकी तो ये कंटिन्यूटी में। ओके ओके। अच्छा अभी इसमें ये देखो कि जो मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा ये जो वोटिंग थ्रेशोल्ड पर है सेक्शन 21 ऑल अदर डिसीजंस, ये 51% है या मोर देन 51% है? अच्छा वो देख लो। सेक्शन 21 मेरे हिसाब से मोर देन 51 लिखा है। आप पढ़ना एक बार जरा सेक्शन 21 में। Section 21. नॉट लेस देन 51 लिखा है। ठीक है, नॉट लेस देन 51 तो 51 इज ओके देन। वर्ड लिखा है नॉट लेस देन 51, सेक्शन 21 सब सेक्शन 8। ठीक है जी। सही है सर। ये अलग अलग जगह अलग अलग बातें लिखी हैं। कई जगह मोर देन, जैसे मोर देन 75 पढ़ रहे थे हम इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी में, वोटिंग ऑन रेजोल्यूशन प्लान, है ना? तो वो अपने को ध्यान में पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है कि कहाँ क्या लिखा हुआ। यहाँ तो ठीक है, चलो लेस देन 51 है तो 51 इज ओके, नॉट लेस देन 51। अच्छा, एनी अदर परसेंटेज इनके अलावा? 90% has 90%. 90% है। हम्म, अप्रूवल ऑफ टाइम एक्सटेंशन 66 है। अच्छा, अप्रूवल ऑफ टाइम एक्सटेंशन इन केस ऑफ फास्ट ट्रैक वो लिख दिया 75, नीचे लिख दिया लास्ट Yes. वाला। हाँ हाँ. एक मिनट, इसको ये हो गया ना? तो 51 भी ठीक है। और इसके अलावा कोई परसेंटेज है क्या? जैसे अप्रूवल ऑफ रीपेमेंट प्लान इसके अंदर आना चाहिए, है ना? वो नहीं है ना? अप्रूवल ऑफ रीपेमेंट प्लान ये तो नहीं है इसमें। Rule of free payment plan. अब वो इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी की बात अलग से कर रहा है क्या? ऐसा भी नहीं लगता। नहीं सब है.
तो इसी में लिख देना अप्रूवल ऑफ रीपेमेंट प्लान मोर देन 3/4, है ना, यही ना, मोर देन 3/4। हाँ सर, मोर देन 3/4 यानी 66%। है नहीं, मोर देन 75 हो गया। नहीं सर, 3/4 यानी 3/4। ओके, थ्री सही है फोर्थ सर, भाई ओके 75 ओके। होता है, तो मोर हाँ देन सर, 3/4 सही। लिखा, मोर देन 75। हाँ सर, हाँ सर। अच्छा ये क्या है, पीपीआईआरपी। पीपीआईआरपी में एलिजिबिलिटी दे रखा है आपको, एमएसएमई प्लस डिफॉल्ट 10 लाख टू 1 करोड़। 10 लाख टू 1 करोड़ क्यों लिखा? अगर 1 करोड़ से ज्यादा होगा तो भी एलिजिबल हो जाएगा। मिनिमम 10 lakhs। मिनिमम 10 लाख लिखना है बस, है ना। इसको भी चेंज मतलब कर दें। वन, नहीं ऐसा नहीं सर, वो अप टू 1 CR है, 1 CR से ऊपर जाएगा तो CRP में जाएगा। ओके, नहीं सही है नहीं, ऐसा किसी ने बोल वो। दिया? हाँ मोर देन 1 CR है तो ऑप्शन है, दोनों में जा हाँ सकता है। हाँ सर। इसमें भी जा सकता है, उसमें भी जा सकता है। हम्म। मतलब मेरा क्वेश्चन ये, अगर मान लो 2 करोड़ होगा तो क्या उसमें नहीं जाएगा, चला जाएगा। जाएगा जाएगा सर। तो यहाँ मिनिमम बस इतना ही लिख दो, ये वन हम्म। करोड़ वाला हटा देना चाहिए यहाँ से, ओके कोई सर। जरूरत नहीं है। और एमएसएमई में क्या है? MSME में सर। हाँ, हाँ, वो उसका टर्नओवर है क्राइटेरिया और सर। इन्वेस्टमेंट है। हाँ। हम्म, तो ये जो लेस देन लिखा है, लेस देन की बजाय भी लेस देन और इक्वल टू है एक्चुअली, डज नॉट एक्सीड वर्ड लिखा है वहां, हाँ, डज नॉट एक्सीड वन है ना। वन। हाँ, तो इसके साथ में ये जहाँ ये लिखा है ना, इसके साथ में ये नीचे एक स्लैश और लगा देना है। जैसे यहाँ यस लिखा है टर्नओवर इतनी 5, तो 5 के बजाय आपको 5 के नीचे एक और डंडा लगा देना है यहाँ, ऐसे। Yes, telephone to Quran. ये क्या है, प्रायर क्लीन रिकॉर्ड। अच्छा, नो सीआईआरपी वगैरह ये सारा इन्होंने इसका कंडीशंस लिख दिया। फॉर्म P1 है कॉन्सेंट ऑफ आरपी। फॉर्म P2 इज लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स विद अमाउंट टू एफसी बिफोर फर्स्ट मीटिंग। फॉर्म P3 हो गया अप्रूवल इन टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट, आरपी अपॉइंटमेंट। फॉर्म P4 हो गया सीडी टू ऑब्टेन 66% एफसी अप्रूवल। सेकंड एफसी मीटिंग डॉक्यूमेंट्स। ये क्या है, सेकंड एफसी मीटिंग डॉक्यूमेंट्स, फॉर्म P4। अगर सर वो साइड में टाइमलाइन भी फॉर्म के साथ साइड में टाइमलाइन भी लिखेंगे। फॉर्म P5 होगा कॉन्सेंट ऑफ एआर, 3 डेज विंडो है ये। फॉर्म P6 हो गया डायरेक्टर्स डिक्लेरेशन। फॉर्म P7 है डिक्लेरेशन ऑफ पीयूएफए ट्रांजेक्शंस। फॉर्म P8 रिपोर्ट बाय आर आईपी बिफोर इनिशिएशन। ये डायरेक्टर डिक्लेरेशन, majority of directors, partners, it has to be filed with AA within 90 days. And COC, OC, maximum 10 largest operational creditors, one representative of workmen plus one representative of employees. ठीक है, ये वन वर्कमैन के बजाय वन रिप्रेजेंटेटिव लिख दो, आरईपी लिख दो वर्कमैन से पहले, और ऐसे ही एम्प्लॉय से पहले भी वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉय। ER। ठीक है, चलिए नाउ वाटरफॉल। वाटरफॉल क्या कहता है, प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट, liquidation, insolvency resolution process cost and liquidation cost, workman dues for 24 months or debts owed to secured creditors if security request, wages and unpaid dues to employees for 12 months, financial debts owed to unsecured creditor, amount due to central state government within 2 years, remaining debts and dues and preference shareholders, equity shareholders। ठीक है, ये तो ठीक है। बैंक्रप्सी में ये है, bankruptcy process costs and expenses, workman dues for 24 months, debts owed to secured creditors plus funeral and testamentary expenses of deceased bankrupt, wages and unpaid dues to employees for 12 months। फिर इसमें कोई सेपरेट लिस्ट नहीं है, अमाउंट ड्यू टू सेंट्रल ऑब्लिक स्टेट गवर्नमेंट, देन रिमेनिंग डेट्स एंड ड्यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू बैंक्रप्ट इफ सरप्लस। ठीक है, ये टाइमलाइन कौन सी है आपकी? अच्छा, ये पीपीआरपी की उसके लिए होगी, फॉर्म्स की। पीपीआईआरपी के लिए है। ठीक है, तो बेसिकली हमें सीआईआरपी वाला जो है ना, उसको रेगुलेशन 40A के हिसाब से उसको चेक कर लेना है ना। यस यस सर।
चलो ये भी हो गया, ये शीट कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट शीट देखते हैं। नेक्स्ट शीट कौन सी है? ये है क्या? यस सर, ड्यूटीज ऑफ आरसी वगैरह। हाँ, ड्यूटीज ऑफ आरपी, सीओसी, लिक्विडेटर, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज, और फिर पेनल्टी है। हम्म, ठीक है। एक बार इसको भी देख लेते हैं मोटा मोटा क्या है। अभी तो टाइम है, और पढ़ना है नहीं पढ़ना? पढ़ना है सर। यस सर, ये कंप्लीट कर डालते हैं। नरेंद्र जी तो ये बोले कि रात ड्यूटीज तक ड्यूटीज पढ़ाते रहो, वाला क्या पार्ट दिक्कत करना है है? सर। हैं? पार्ट तो बढ़ते हैं। सर अभी तो परीक्षा ही पास करनी है सर, काम तो है, पर सर अभी यही प्रायोरिटी आपका ही प्रायोरिटी वाला है। ठीक है। ब्लेसिंग ऑफ गॉड सर, काम तो बहुत सारा है पर प्रायोरिटी में ही है सर। हाँ ये तो है, ये बात तो ठीक है। और इसमें ये भी दे दिया कि वोटिंग होगा या नहीं होगा। अच्छा, मतलब किसका पावर है ये दे दिया। जैसे जो आईआरपी की पावर है वो शुरू में दे दी, सीओसी की पावर फिर अगले वाली सीओसी की पावर दे दी, इस तरह से ऐसे कर दिया इसने। बस इतना बड़ा काफी है ना? अब थोड़ा समझ में तो आ जाएगा ना क्या बोल रहे हैं। चलिए, तो पब्लिक अनाउंसमेंट यू हैव टू मेक विद इन 3 days of 7 the days। appointment, and calling for submission of claims you have to verify within 7 days. अच्छा, if you don't make public announcement within 3 days तो क्या होगा? CIP C1 सर। हाँ, CIRP 7, ठीक है। CIRP 7 आपको कब तक भरना है? T+6, ठीक है। T और plus, फिर एवरी 30 days, हाँ मतलब परफेक्ट। T+36, T+766, इस तरह से। मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द सीडी, एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द सीडी, ठीक है। ये इसकी ड्यूटीज दे रखी है। कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट्स अंडर एनी लॉ ऑन बिहाफ ऑफ सीडी ड्यूरिंग CIRP। तो ये कौन करेगा? IRP या आरपी करेगा। अब PPIRP में कौन करेगा कंप्लायंस? CD। पीपी है, ठीक है। और सीडी अगर नहीं कर रहा तो आरपी क्या करेगा? अब मान लो सीडी कंप्लायंस नहीं कर रहा, तो आरपी का कुछ ड्यूटी है नहीं है? यस सर। आरपी सीओसी को बताएगा, हम्म है ना? हम्म Collect all information related to the assets, liabilities, finances, and operations. Receive, collect, and verify. Ascertain classes of creditors. Identifying and selecting AR. Applying to AA for appointment of AR. Constitution of COC. Filing report within 2 days of verification. Holding the first meeting within 7 days. RP who is an AR shall circulate agenda to class of creditors. Announce voting window at least 24 hours before it opens. तो ये देख सकते हैं अपने हिसाब से। एक बार अब आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। देख करके अगर कोई गलती हो तो इसमें बताइएगा। और अगला देखते हैं, ये क्या कहता है। ये है फिर आपके पास एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अपील टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विद इन 30 days of the NCLT order, and NCLAT may extend by 15 days once only. Appeal to SC within 45 days plus 15 days. Expeditious disposition, fraudulent initiation तो पेनल्टी है 1 लाख to 1 करोड़। कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी तो ये इसमें दे रखा, और ट्रांजेक्शंस डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर्स। एप्लीकेशन ऑफ कोड, companies, LLPs incorporated, other bodies incorporated और individuals and partnerships। फिर पेनल्टीज दे दिया इन्होंने। सर थोड़ा पूछना था, हाँ। ये क्लोज ABC है, तो हम कौन से सेक्शन का रेफरेंस देंगे? कौन सा?
यहाँ पे एप्लिक ये तो सेक्शन 2 की बात कर रहा ना बेसिकली। अच्छा ये सेक्शन 2 में है ना, कहाँ पर अप्लाई हो रहा है ये एप्लीकेशन ऑफ कोड। ओके ओके ये सर सेक्शन 2 में दे रखा। ओके सर हम्म। सेक्शन 2 लिखना भूल गया यहाँ लगता है, ये सेक्शन 2 है बेसिकली। ओके सर उसके बाद में ये पेनल्टीज आ गई आपकी। इंडिविजुअल एंड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, पेनल्टी इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी। और ऊपर में जो पेनल्टी दे दी इन्होंने, ये यहाँ पेनल्टी दे दी है। लेकिन 69 के आगे भी तो सेक्शन है, वो कहाँ चले गए? 77 यही तक है सेक्शंस। ये 69 तक कर दिए इसने, बाकी कहाँ गायब कर दिए? 70, 71 वगैरह, हम्म वो कहाँ है? देख रहे हैं सर एक सेकंड It is there in the same sheet. It is there. AA for CD. हाँ। The adjudicating authorities for CD. That sheet. नो नो नो, what I mean to say is, where is the reference for section 70 onwards? 69 तक हो पेनल्टी गया, यस 69 के आगे भी तो है ना, देयर आर पेनल्टी सेक्शंस। हम्म तो वो कहाँ चले गए? वो ऐड कर लेंगे सर। नहीं, कहीं और तो नहीं कर दिए इसने, वो देखने हैं ना। नहीं सर और कहीं पे नहीं है तो हैं? नहीं और ये शीट में और कहीं पे नहीं है पूरे पे हम्म। वो गायब कर दिए लगता है। नहीं ऐसा नहीं सर, मुझे लग रहा है कि उन्होंने है ना उसके हिसाब से किया है सर, सीआरपी का हैं? अलग है, उसके सर बाद एफर्ट तो बहुत इंडिविजुअल सारे डाले इसके क्या? नीचे भी है सर पेनल्टीज, उसके नीचे भी है सर नहीं, पेनल्टी वाले सेक्शन इसमें। 70 कहाँ है इसमें? 184 वाला है 70 to 77 180 है। वो नहीं है सर, 184 से 187 है सर। नहीं, वो तो इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी वाले हो गए ना। हाँ 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 यस सर। तो मेरे कहने का मतलब, कॉर्पोरेट में भी तो पेनल्टीज है ना। वो वाले पेनल्टी वाले सेक्शन कहाँ गायब कर दिए? Oh, उसी sheet में है. है? Hmm. कौन सी शीट नहीं में? AA adjudicating authorities. AA for CD. One sheet is there. The first portion is 61 to 65. After that, 68, 69, 70, 71. IRP for corporates. Those provisions. सर वो आपके वाली एक्सेल फाइल में है यहाँ पे कन्वर्ट किया ना तभी स्किप हो गया है सही है सर, सही Might है be, परफेक्ट। might be. Excel sheet में है. हाँ। उसमें पूरा है सर। Excel sheet में पूरा है. नहीं, एक्सेल शीट नहीं, अभी तो हम इसी को देख रहे हैं ना। सही है। इसमें दिया है कि नहीं दिया? नहीं सर इसमें नहीं है सर नहीं है। नहीं सर पक्का हम्म। कोई बात नहीं, इसीलिए वो जरा सा ही तो है, इसमें डाल देंगे, हाँ वही तो है ना। यस सर भाई देखो, ऐसा है, वो वाला जब हम उसका प्रिंट आउट ले रहे थे, वो 13-14 पेजेस में आ रहा था। हम्म अभी क्या है, इसने 8 पेजेस में कर दिया इसको। थोड़ा बहुत जो कमी है उसको दूर कर लेते हैं, उसको ठीक कर लेंगे, क्या है। हम्म हम्म, बाकी तो इसने अपना कुछ थोड़ी किया है, इसने उसी को रीअलाइन किया। बेसिकली ही इज एन इंजीनियर, ये कोई वो सीए या वो थोड़ी है। इसको तो हमने क्या काम दिया, इसको बोला भाई 13 शीट्स को आपको मिनिमम 4-5 शीट में कन्वर्ट कर दो। तो बोला जी 4-5 में तो नहीं हो पाएगा, 8 में मैं कर देता हूँ तो इतना कर दिया वो भी अच्छा है हम तो नहीं कर पा रहे थे मैं। हाँ।